S. Chan presents educational video lectures as per the new UGC curriculum. Difficult concepts made easy. Study anywhere, anytime. Do you know that after the independence, just after 1950s, our country was facing some of the industrial problems, like there were regional imbalances. We have talked about the growth problems relevant to the economy, and all of a sudden there was this advent of industrial policy reform, and under which we also brought in Industrial Licensing Act, right? And wherein which we talked about monopolistic and restrictive trade practices, MRTP. Have you heard of it? Right. So we'll be talking about, in today's video, we'll be talking about MRTP Act and IRDA Act or IDRA Act, right, which will be explaining how our country has evolved through the post-independence era till now. To get in-depth knowledge of various subjects in commerce, we recommend these books from S. Chan Publishing and Vikas Publication. Link is provided in the description box. Welcome to S. Chan Academy. My name is Saurav Gupta. We'll be looking into the Indian licensing or industrial licensing policy today, and inclusive of MRTP Act. So this is industrial licensing now. So there was this issue of regional imbalances. There were some specific industries in a specific area. So most of the companies or industries wanted themselves to be set up in some urban areas. And those urban areas were developed on a huge scale, but then rural areas were left behind. And most of the concerns relevant to the population or the growth of the population and the life sustainability and everything like that was dependent on the development of a regional area or the rural area, right? And that rural or regional area was only to be developed through industrialization or service sector transformation. But then why did we need to bring in this industrial licensing? Because there were certain malpractices going on, trade practices going on, which were not to be vouched for, right? So industrial licensing was introduced in post-independence India as a part of industrial policy, right? And at that moment, 1951, we brought in IDRA, that is Industrial Development and Regulation Act, 1951, which regulated industrial development and required licenses for establishment and expansion. Now, पहले क्या होता था कि छोटे मोटे जो बड़े कंपनीज भी चल रहे थे या छोटे मोटे कंपनीज चल रहे थे, उनको ज़रूरत नहीं थी कि आप लाइसेंस लो किसी चीज़ का या परमिशन लो गवर्नमेंट से. बट देन आफ्टर 1951 गवर्नमेंट सेड कि आपका एक स्पेसिफिक टर्नओवर, जो कि अभी 1966 में जब दोबारा हुआ ये पॉलिसी आया, तो वहाँ पे 5 करोड़ के ऊपर के जितने भी कंपनीज थे उनके लिए कंपलसरी कर दिया गया. बट देन वहाँ पे टर्नओवर शायद थोड़ा कम रहा होगा कि आप अगर कंपनीज इस पर्टिकुलर एक थ्रेशोल्ड लिमिट के ऊपर अगर टर्नओवर कर रही हैं तो उनको लाइसेंस की ज़रूरत है, उस तरह की इंडस्ट्रीज़ को लाइसेंस की ज़रूरत है. बट स्मॉल मीडियम स्केल इंटरप्राइजेज वर नॉट रिक्वायरिंग और दे डिड नॉट हैव एनी सच रिक्वायरमेंट्स. दे कैन कंटिन्यू डूइंग देयर बिजनेस, दे कैन इनिशिएट देयर बिजनेस इफ देयर वाज अ थ्रेशोल्ड लिमिट विच इज नॉट मीट फॉर द पर्पज ऑफ टर्नओवर. ठीक है. नाउ आपका एस्टैब्लिशमेंट और एक्सपेंशन के लिए आपका लाइसेंस बहुत ज़रूरी हो गया था, क्योंकि देयर वर सर्टेन प्रैक्टिसेस विच वर गोइंग ऑन. सो गवर्नमेंट ने सोचा कि रेगुलेशन लेके आते हैं, अदरवाइज कुछ भी चल रहा है. मतलब उस टाइम पे आप सुनते होगे, मूवीज़ में भी देखते होगे कि कितना सारा टाइम गैंग वॉर्स होती थी. गैंग वॉर्स के दौरान क्या क्या बिजनेसेस आप सुनते थे, कई इलीगल प्रैक्टिसेस सुनते थे आप, राइट, उन मूवीज़ में. तो वो सब चीज़ों को कर्व करने के लिए वी ब्रॉट इन दिस IDRA, राइट. देन monopolies and restrictive trade practice, which is a part of IDRA, which clearly the word itself explains monopolies and restrictive trade practices. There were certain companies which tried monopolizing the market for a specific product, and there were no competitors allowed to enter the industry. And secondly, there were certain restrictive practices which were not
authorized or allowed to do, the companies were doing so. So they brought in this particular MRTP Act in 1969, aimed to prevent concentration of economic power. So certain companies, certain industries which were having the economic power or the financial power to rule over the industry and curb unfair trade practices. So basically we tried to increase the competition, right? Moving to MRTP Act included the Industrial Development Regulation Scheme requiring government approval for capacity expansion and merger. So we needed some permissions, licenses, documentary evidences. So if we wanted to expand, we wanted to show them that how much employment we have generated, how much is the future for the employment, what sort of future is for the employment generation, then what exact profit and loss we are making. They needed to show several statements regarding their financial accounts, financial statements, right? And then permission was given to them as per the MRTP Act. Now these regulations aim to regulate industrial growth, prevent monopolies and ensure fair competition. अब आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ. ये जब रीजनल इम्बेलेंसेस बहुत ज़्यादा थे तो उन्होंने किया क्या, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग के थ्रू लाइसेंस इस शर्त पे देना स्टार्ट किया कि जैसे कि कंपनीज लाइक NTPC, गेल, राइट, भेल, BHEL, भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, राइट, और नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन या फिर गैस इंडिया, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इन जैसे कंपनीज को बोला गया कि आप अपने इंडस्ट्री को, अपने फैक्ट्री को, अपने प्रोमाइसेस को रूरल इंडिया में सेटअप करो. रूरल इंडिया में सेटअप करने से क्या होगा कि आप एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करेंगे प्लस उस एरिया का भी डेवलपमेंट होगा. डेवलपमेंट इन द सेंस होलिस्टिक डेवलपमेंट. ना होलिस्टिक डेवलपमेंट क्या कि एजुकेशनल यूनिट्स भी आप अपने रेसिडेंट्स के लिए खोलेंगे तो उनके आसपास रहने वाले सराउंडिंग्स में जो भी बच्चे होंगे वो भी वहाँ पढ़ सकते होंगे. उसके अलावा जो आप प्रोड्यूस करेंगे उसका डायरेक्ट इनडायरेक्ट फ़ायदा उनके नेबरहुड्स में भी मिलेगा उनको, और उससे डेवलपमेंट फास्ट पेस पे जाएगा, राइट. सो फॉर दैट रीज़न MRTP और IDRA एक्ट ने कहीं ना कहीं एक रिवोल्यूशन लाया, और उसकी वजह से आज जो रूरल इंडिया में आप देखते हो इंडस्ट्रियल सेटअप, जो आप देखते हो कि औद्योगिक डेवलपमेंट है, वो एक्सपोनेंशियली जो ग्रो हुआ है ना, वो इन एक्ट्स की वजह से हुआ है. नाउ अगर वो नहीं होता तो शायद तक हम रूरल सेक्टर को डेवलप नहीं कर सकते थे उस स्पेस से. मूविंग टू द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, हम इस बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हैं, बट फॉर्मली जस्ट गो थ्रू द लाइंस. Regulating and controlling industrial development. So yes, we wanted to regulate, we obviously wanted the industrial development, but we also wanted to regulate and control it, because development के नाम पे कोई unfair practices होने लग जाए तो फिर उस development का कोई फायदा नहीं. So we needed to regulate it. Then preventing concentration of economic power and promoting fair competition. Yes, so basically कंसंट्रेशन जो जिनके एक इंडस्ट्री का है, कंसंट्रेशन किसी एक के हाथ में, तो गवर्नमेंट ने भी कई बार उसमें पार्टिसिपेट करना स्टार्ट कर दिया. गवर्नमेंट ने अपने हाथों में ले ली कुछ चीज़ें, एंड दैट्स हाउ थिंग्स गॉट चेंज्ड, राइट. देन इंश्योरिंग बैलेंस्ड इंडस्ट्रियल ग्रोथ एंड रीजनल डेवलपमेंट. सो मैंने आपको इसका एग्जांपल दिया कि रूरल इंडिया में क्लियरली वहाँ पे इंडस्ट्रियल सेटअप करो और उस तरह से ग्रो करो. अगर आप रूरल इंडिया में सेटअप करते हो तो उससे वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा. एम्प्लॉयमेंट के साथ साथ you will also make people educated, you will also make people developed for life standards and all, right. So protecting the interest of small scale industry, अगर हम बात करें तो small scale industries के लिए कोई लाइसेंस की ज़रूरत नहीं थी. स्मॉल और मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज के लिए वो अपना सेटअप कंटिन्यू रख सकते थे, बट उसके परव्यू में आते थे, IDRA के परव्यू में आते थे, ताकि वो आराम से, लाइसेंस की ज़रूरत तो नहीं थी बट उनको एक प्रोटेक्शन इस तरह से मिल गई थी. जो बड़े कंपनीज थे अगर उनको चलाना तो उनको लाइसेंस लेना, और लाइसेंस लेने के लिए एक प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ेगा, एंड उसके लिए उनकी शर्तें माननी पड़ेंगी गवर्नमेंट की, और उन शर्तों में ये कहीं ना कहीं इनके इंटरेस्ट की बात होती थी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के बारे में, राइट. सो उनको सेफ गार्ड करा. उसके बाद मैनेजिंग इंडस्ट्रियल ऑपरेशंस थ्रू लाइसेंसिंग प्रोविजंस. अब जो भी इंडस्ट्रियल ऑपरेशंस थे, अब एक टैब भी रखना होता है आपको किसी भी एक्टिविटी पे, इंडस्ट्री में या आपके जो भी फैक्ट्रीज रन कर रहे हैं उनकी एक्टिविटीज़ पे. आज की डेट में भी हम बिजनेसेस के एक्टिविटीज़ पे टैप रखते हैं थ्रू अकाउंटिंग, थ्रू उनका रिटर्न फाइलिंग, हम उनके डॉक्यूमेंट्स मंगा लेते हैं, हम कभी कभी रेट्स भी करते हैं, राइट. सो वो सब चीज़ें इस एक्ट में मेंशन थी कि मैनेजिंग इंडस्ट्रियल ऑपरेशंस थ्रू लाइसेंसिंग प्रोविजंस. हम लाइसेंस तभी देंगे जब हमें लगेगा कि वो एक
वैलिड रीज़न, वैलिड बेस पे मांग रहे हैं लाइसेंस, और लाइसेंस उन कंपनीज को एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री के लिए देना जिनके लिए वो चाहते थे कि अच्छा ठीक है, ये इंडस्ट्री ही स्पेसिफिकली लाइसेंस रिक्वायर करती है और इस इंडस्ट्री को लेट्स से स्टील इंडस्ट्री अगर किसी को चलानी है तो उसको लाइसेंस कंपलसरी था। उसके लिए कुछ नॉर्म्स होते हैं जिसमें बहुत सारे लेबर लॉज और बहुत सारे जनरल लॉज भी फॉलो करते हैं जिनको आपको फुलफिल करना होगा, जिन प्रैक्टिसेस को आपको ऑन रिटन पेपर्स फुलफिल करना होगा, राइट। मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज प्राइवेटाइजेशन। नाउ हम प्राइवेटाइजेशन को एलपीजी में पढ़ चुके हैं, इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 के पास, राइट। सो प्राइवेटाइजेशन involves, so the same meaning है, privatization is basically disinvestment. Privatization is participation of private ownership in the government PSUs, right? So privatization involves transferring state-owned, or state here means government, state-owned enterprises to the private sector, right? So basically अभी मैंने examples दिए थे पिछले वीडियो में आपको कि एयर इंडिया को basically फिर से टाटा कंपनी ने, टाटा एंड सन्स ने एक्वायर कर लिया। तो प्राइवेटाइजेशन इसे ही बोलते हैं, राइट। इट एम्स टू एनहांस एफिशिएंसी एंड कंपटीशन इंडस्ट्रीज। सी अब गवर्नमेंट कंपनीज बहुत सारी चीज़ों पे काम कर रहे थे, बट देन उनको मेजर जो सिग्निफिकेंट इश्यूज है उन पे काम करना ज़्यादा ज़रूरी है, तो वो इतना ध्यान नहीं दे पा रहे थे इन इंडस्ट्रीज पे जहाँ पे डेवलपमेंट चाहिए और जहाँ पे ध्यान चाहिए, नोटिस चाहिए। अब उसके लिए उनको चाहिए था कि प्राइवेट कंपनीज कुछ टेक ओवर कर लें एंड प्राइवेट कंपनीज कैन go ahead with such sort of improvisation, right? So efficiency और competition बढ़ जाता है private companies के आने से। Then privatization reduces the government's role in business operation। बिल्कुल reduce क्या मतलब ख़त्म ही कर देते हैं, right? So government का सिर्फ इतना interference रहेगा कि भाई competition बना रहे, competition ठीक ठाक चलता रहे, right? Then the process includes disinvestment or sale of public enterprise to private entities। अभी आपने सुना होगा रेलवेज को बिकते हुए, रेलवेज के कुछ स्टेशंस, कुछ ट्रेन्स को स्पेसिफिकली प्राइवेटाइज होते हुए, राइट। बीएसएनएल को सुना होगा प्राइवेटाइज होते हुए, कुछ पार्ट उसका सेल आउट हो गया, कुछ शेयर्स उसके सेल आउट हो गए। देन एयर इंडिया के बारे में सुना होगा आपने, एयर इंडिया सेल आउट हुआ, राइट, टू टाटा एंड सन्स अगेन। सिमिलरली बहुत सारे और ऑपरेशंस और कंपनीज, देयर इज एन नंबर ऑफ कंपनीज विच वर लिस्टेड जो डिसइन्वेस्टमेंट या प्राइवेटाइजेशन का पार्ट में थी, राइट। सो इट कैन अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट, इम्प्रूव टेक्नोलॉजी एंड बूस्ट प्रोडक्टिविटी। अब गवर्नमेंट को ज़रूरी नहीं है कि, देखो गवर्नमेंट के पास अपने वेंडर्स होते हैं, अगर गवर्नमेंट उसको रन करना चाहती है और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को एक हैवी सैलरी दे रही है, तो देखो ना ही एम्प्लॉय मार्केट में सैलरीज को लेके वो नेगोशिएट कर सकते थे, बट यहाँ प्राइवेट कंपनीज आने से क्या हुआ कि private companies can negotiate easily with the employees for salaries। जो भी हायर कर रहे हैं वो employees, they can negotiate easily। बट गवर्नमेंट को एक नॉर्म पे स्केल पे सैलरी देना होता था। अब उसमें कुछ इनएफिशिएंट एम्प्लॉय भी आ जाते थे, कुछ एफिशिएंट होते थे, तो कई बार एफिशिएंट एम्प्लॉय वुड डू द वर्क ऑफ इनएफिशिएंट एम्प्लॉयज ऑल्सो, राइट। सो वहाँ पे ये प्रॉब्लम भी था। दूसरा, देयर वाज लैक ऑफ कंट्रोल इन दी गवर्नमेंट सेक्टर, राइट। सो कंट्रोल मैकेनिज्म उतना अच्छा नहीं था, जिस वजह से देयर वर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द कंपनीज। लाइक फॉर एग्जांपल BSNL itself, they had a huge problem of उनका डिस्कनेक्शंस हो जाना, बार बार टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क सही से ना चलना। ऑल्दो दे वर स्प्रेड थ्रू आउट इंडिया, इवन टॉप टू बॉटम, लाइक फॉर नॉर्थ टू साउथ, वो हर जगह अवेलेबल थे उनके नेटवर्क्स, बट अगेन अगर कुछ रिपेयर चाहिए होता था, सर्विसेज चाहिए होती थी, वो अवेलेबल नहीं थी। एंड उसके लिए उसको प्रॉपर एक मैकेनिज्म के थ्रू लेटर भेजो, फिर लेटर पे सुनवाई होगी, एंड दैट्स हाउ द प्रोसेस वेंट, राइट। तो वो उतना हेफ्टी और एक लंबा प्रोसेस होता था जो कि कस्टमर्स को नहीं चाहिए, राइट। सो फिर देन द कंपनी स्कीम, BSNL आया, BSNL के बाद एयरटेल, वोडा, ये सब आए, और उन्होंने फिर कंपटीशन बढ़ाया, चेंजेस आ गए, लोग प्राइवेटाइज सिम यूज़ करने लग गए, तो चेंजेस आए। BSNL आज की डेट में हम कितने लोग चलाते हैं, आप इमेजिन कर लो, राइट। सो इट कैन अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट्स। सो आप प्राइवेट कंपनीज की को बोल सकते हो कि आप इन्वेस्ट कर सकते हो इस कंपनी में, वी हैव इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल, वी हैव कस्टमर्स अवेलेबल, एंड आप सिर्फ हमें पैसा इन्वेस्ट करो, हम आपको ये डिसइन्वेस्ट करके दे सकते हैं या प्राइवेटाइज करके दे सकते हैं, राइट। प्राइवेटाइजेशन
It addresses inefficiencies and promotes competition. मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी एक एग्जांपल दिया कि inefficient एम्प्लॉयज़ भी होते थे गवर्नमेंट सेक्टर में, जो काम नहीं करना चाहते थे, उनको लगता था हमारी जॉब सरकारी है, हम आराम से बैठ के खा सकते हैं, राइट. सो वो इनएफिशिएंसी रिमूव कर दी किसने? प्राइवेट सेक्टर ने. अब प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉयज़ को एक आंसरेबिलिटी होती है, एक अकाउंटेबिलिटी होती है जो हमको देनी होती है, राइट. सो इनएफिशिएंसीज एंड accountabilities have increased and it promotes fair competition. Now in India, privatization has been a part of economic reforms since the 1990s. Now after the LPG, liberalization, privatization and globalization, the industrial policy 1991, उसके बाद से आपने देखा होगा कि बहुत सारा चेंजेस आपको दिख रहे हैं. आज की डेट में गवर्नमेंट को लगता है कि अगर हमें कोई कंपनी गवर्नमेंट ऑपरेशन से रन नहीं हो पा रही है तो वो प्राइवेटाइज कर देता है उसको बहुत इजीली, राइट. देन देयर आर सर्टेन मेथड्स ऑफ प्राइवेटाइजेशन. सो देयर आर वेज थ्रू विच कंपनीज आर प्राइवेटाइज्ड. So that's how it is done. Sales through holding companies. So sometimes companies sell their subsidiary companies. A holding company और subsidiary company क्या होती है कि एक टाटा एंड सन्स है फॉर एग्जांपल. मैं एग्जांपल के तौर पे यूज़ कर रहा हूँ एक प्राइवेट कंपनी का नाम. टाटा एंड सन्स इज़ अ होल्डिंग कंपनी. उसके नीचे जितने भी कंपनीज, टाटा के बहुत सारे कंपनीज है, तनिष्क है, टाइटन है, ये सब कंपनीज सब्सिडरी कंपनीज है. तो टाटा एंड सन्स क्या कर सकता है कि अपने किसी एक कंपनी को बेच सकता है. सिमिलरली गवर्नमेंट भी क्या कर सकती है? इट कैन सेल थ्रू शेयर्स. इट कैन सेल थ्रू शेयर्स. तो एयर इंडिया के शेयर्स बिक गए, BSNL के शेयर्स बिक गए. इस तरह से गवर्नमेंट भी काम करती है, राइट. देन टोटल सेल ऑफ शेयर्स, यानी कि पूरा अक्वायर कर लो, राइट. टोटल सेल ऑफ शेयर्स, कंप्लीट शेयर अलॉटमेंट. सो गवर्नमेंट ये भी करेगी कि आप पूरी कंपनी एज इट इज अक्वायर करो पूरे शेयर्स के साथ, उसके खर्चे, उसका एसेट, उसका सब कुछ, राइट. देन पार्शियल सेल ऑफ शेयर्स. अब कंपनी BSNL को बोला कि 50% या 40% हम नहीं बेचेंगे, फिर 40% विल कीप इट आवरसेल्व्स एंड 60% हम आपको दे देंगे. सो दैट इज पार्शियल सेलिंग ऑफ शेयर्स. देन बाय ट्रेड सेल, अब हम ट्रेड ऑफ कर लेते हैं कई बार कि ठीक है हम ये आपको इस तरह से हेल्प करेंगे और आप इसको चलाओ, कंपनी को प्राइवेटाइज कर दिया, राइट. हम आपको फंडिंग भी करेंगे इसके लिए एंड आपको इस कंपनी को रन करना है, राइट. सो दैट इज ट्रेड सेल. सेल टू मैनेजमेंट और वर्कर. अब कई बार कंपनी का मैनेजमेंट इतना स्ट्रांग होता है कि उनमें एलिजिबिलिटी होती है वो कंपनी को रन करने की, पोटेंशियल होता है वो कंपनी को रन करने का, उन वर्कर्स को. सो कई बार मैनेजमेंट के पास शेयर्स भी होते हैं, वो शेयर्स के थ्रू अक्वायर कर लेते हैं, या फिर कंपनी को लगता है कि ठीक है, मैनेजमेंट को लगता है कि वो खुद अक्वायर कर सकते हैं उस कंपनी को, तो वो भी होगा, राइट. सो मेथड्स ऑफ प्राइवेटाइजेशन. देन बाय सेल ऑफ पार्ट्स, अगेन दैट इज द सेम थिंग, partial sale of shares. So that is sales through shares. Second one is contracting out. हमने गवर्नमेंट ने ये देखा कि ठीक है कुछ टाइम के लिए हम रन कर सकते हैं अगर कंपनी, ठीक है कुछ प्राइवेटाइज करने से पहले हम लेट्स सी पीपल विल कीप इट इन अ प्रॉपर रोबस्ट मोड और नॉट. तो उसके लिए दे सोल्ड इट ऑन अ कॉन्ट्रैक्टिंग आउट, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस कि फर्स्ट 2 years यू विल ऑपरेट इट एंड लेट्स सी इफ यू आर ऑपरेटिंग इट राइट. If you're operating it right, then we further will see the complete acquisition of it. Otherwise, we'll take it back also sometimes. So contracting out can be done. और या फिर मैं contract out जब करता हूँ तो contract में मैं सिंपल एक चीज़ और कर सकता हूँ. मेरे को लगता है ये कॉन्ट्रैक्टर, सपोज मेरी गवर्नमेंट की एक कैंटीन है, उस कैंटीन को चलाने के लिए एक केटरर आया मेरे पास, वो कॉन्ट्रैक्ट ले लिया उसने. अब उस केटरर ने 2 साल तो अच्छे से चलाया, तीसरे साल गड़बड़ करने लग गया खाने में, मटेरियल अच्छा यूज़ नहीं कर रहा है. तो क्या किया तीसरे साल मैंने, बीइंग द गवर्नमेंट, मैंने उसको बोला आपकी छुट्टी, हम दूसरा कॉन्ट्रैक्टर को बिडिंग बुलवाते हैं. हमने बिडिंग बुलाई दूसरे कॉन्ट्रैक्टर को, तो वो कैंटीन ऑपरेट करने को दे दी. ये तो एक छोटी कैंटीन का एग्जांपल लिया, बट यू कैन थिंक अबाउट कंपनीज ऑल्सो. सो विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक एंड देन विल कंटिन्यू विथ सम मोर न्यू टॉपिक्स. Now quality learning is easily available at your doorstep. S. Chand Academy brings detailed lectures based on UGC curriculum as per the New Education Policy 2020. So do not forget to subscribe to the S. Chand Academy and access the wide world of knowledge conveniently sitting within the comfort of your home. Stay connected and keep watching S. Chand Academy. Happy learning! Welcome back to S. Chand Academy.
So before the break, we have gone through industrial licensing, we've gone through IDRA Act, we have gone through MRTP Act, and we have gone through privatization and methods of privatization. Now let's understand what is devaluation is. Now we have talked about कि हम इस बारे में बात करेंगे devaluation के बारे में. अब किसी कंट्री में इन्फ्लेशन है, मान लो महंगाई बहुत ज़्यादा है, राइट? महंगाई है तो उसको कैसे कर्ब करना है, उसके लिए एक मार्केट मैकेनिज्म है कि भाई आप अपना जीडीपी सुधारो, राइट? जीडीपी सुधारेंगे कैसे? एक्सपोर्ट्स बढ़ा के. अब एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे तो फिर क्या होगा कि आप एक्सपोर्ट ज़्यादा करेंगे. अब एक्सपोर्ट ज़्यादा करेंगे मतलब ये है कि लोग आपसे ज़्यादा खरीदेंगे, राइट? लोग मतलब फॉरेनर्स, फॉरेन नेशनल्स, फॉरेन कंपनीज, they will buy your goods as well as your services. For example, IT services. आपने आज की डेट में बैंगलोर in itself is known as a IT hub. अब IT hub क्यों बोलते हैं उसको? क्योंकि वर्ल्ड की जो IT कैपिटल या इंडस्ट्रियल कैपिटल बोली जाती है, जो सिंगापुर बोलते हैं जिसको, राइट? उसके कंपैरिजन में भी बैंगलोर जो है वो टॉप मोस्ट रैंक में आता है कि IT का एक्सपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज मोस्ट ऑफ द टाइम इट हैपन्स फ्रॉम बैंगलोर. व्हाई? बिकॉज ऑफ द चीप स्किल्ड लेबर, राइट? सो वो कैसे होगा? क्योंकि हमारा जो करेंसी है वो डिवैल्यूड है अगेंस्ट डॉलर, अगेंस्ट अदर करेंसीज. सो जब डिवैल्यूड है तो यानी अब उन कंपनीज को जो फॉरेन नेशनल्स हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई US बेस्ड कंपनी है, वो IT सेक्टर में हमसे कुछ लेना चाहते हैं, IT सर्विसेज लेना चाहते हैं, हम स्किल्ड इनफ हैं उसको बनाने के लिए, तो वो उनको हमें उनके करेंसी के हिसाब से तो कम ही देना पड़ेगा क्योंकि हम ऑलरेडी डिवैल्यूड करेंसी है, राइट? सो दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, दिस इज डिवैल्यूएशन. नाउ डिवैल्यूएशन के इम्पैक्ट्स भी होते हैं और डिवैल्यूएशन करने की भी वजहें होती हैं. देयर आर रीजंस टू डू डिवैल्यूएशन, राइट? So we'll talk about those reasons as well, but then let's see formally how it goes. Devaluation is a deliberate downward adjustment in a country's currency value. अब मेरे देश में एक करेंसी का वैल्यू मैंने आपको बताया था एक वीडियो में क्लियरली कि $1 इक्वल्स टू 3 रुपीज़ या 4 रुपीज़ होता था 1948-50s में. डिवैल्यूएशन करना पड़ा. हमने पहला डिवैल्यूएशन किया 1949 में, राइट? उसके रीजंस थे कि हमें लगा कि हमारा तो ऐसे वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ कोई इंटीग्रेशन ही नहीं होगा, लोग हमसे कुछ खरीदेंगे नहीं, क्योंकि उस टाइम ब्रिटिशर्स जस्ट वेंट आउट ऑफ द कंट्री एंड ब्रिटिश राज था यहाँ पे. लोगों को लगता था एक प्रॉस्पेरस कंट्री है, बट जब हमारे को सेल्फ सस्टेनिंग की बात आई तो हमने सोचा कि अब कैसे ग्रो करें. तो ग्रो करने वाली बात यहाँ से आती है कि आपको अपना करेंसी को डिवैल्यू करना पड़ा. क्यों? ताकि लोग आपसे ज़्यादा खरीदेंगे. अब ज़्यादा खरीदेंगे तो आपका जो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जीडीपी का, दैट इज X-M, नेट एक्सपोर्ट्स, वो ग्रो करेगा क्योंकि एक्सपोर्ट ज़्यादा चाहती है कोई भी कंट्री. और हर कंट्री के इकोनॉमी में जीडीपी का जो X-M फैक्टर है वो इम्पॉर्टेंट है. हर कंट्री चाहती है उसकी कंट्री की करेंसी की भी डिमांड हो, उस कंट्री के प्रोडक्ट्स की भी डिमांड हो, उस कंट्री के सर्विसेज की भी डिमांड हो. अब करेंसी की डिमांड कब होगी? जब आपके प्रोडक्ट की डिमांड होगी, जब आपकी सर्विस की डिमांड होगी, क्योंकि आपको तो अपने रुपए में अपनी करेंसी में चाहिए हर चीज़, राइट? सिमिलरली हम अगर हम US से बिजनेस करना चाहते हैं तो हमें US डॉलर चाहिए होंगे, तो अगर US डॉलर चाहिए तो US डॉलर का रिजर्व बनाते हैं हम. उसी तरह से इंडियन करेंसी का भी रिजर्व होता है हर कंट्री में. अब उस रिजर्व का हम क्यों चाहते थे कि उस करेंसी की डिमांड हो? ताकि लोग जब करेंसी डिमांड करेंगे तो प्रोडक्ट के लिए भी आएंगे हमारे पास, सर्विस के लिए भी आएंगे हमारे पास, तो जिस वजह से बिजनेस ग्रो करेगा और हम नेट एक्सपोर्ट्स बढ़ा पाएंगे, राइट? सो डिवैल्यूएशन इज डेलिबरेट डाउनवर्ड एडजस्टमेंट इन कंट्रीज करेंसी वैल्यू. इट एम्स टू मेक एक्सपोर्ट्स चीपर एंड इंपोर्ट्स मोर एक्सपेंसिव. यहाँ पे हमने फिर कोटा सिस्टम के बारे में पढ़ा है, लाइसेंसिंग के बारे में पढ़ा है. हमने समझा है कि इंपोर्ट्स हम डिमोटिवेट करते हैं, इंपोर्ट्स के लिए नहीं चाहते हम इंपोर्ट्स, क्योंकि नेट एक्सपोर्ट्स इज द कंपोनेंट ऑफ जीडीपी calculation. Okay, so devaluation enhances competitiveness in the international market. Now devaluation के वजह से आपकी करेंसी की डिमांड बढ़ेगी. ऑब्वियस है कि आपकी करेंसी की डिमांड के अगेंस्ट दूसरा करेंसी की जो डिमांड एग्जिस्ट कर रहा था उसके अगेंस्ट आप दोनों एक तरह से कंपटीशन में आ जाएंगे उस करेंसी के लिए. अब आज की डेट में आप देखिए
हमने पैगिंग करी रिसेंटली रशिया के साथ। रशिया से जो भी ऑयल हम खरीदेंगे हम उसको इंडियन रुपीज़ में और उधर से वो हमसे रूबल में अपने करेंसी में एक्सचेंज कर सकते हैं। वो पैगिंग इसलिए हुई क्योंकि हम चाहते थे कि जो सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर है डॉलर के पास वो डिसेंट्रलाइज हो जाए कैसे भी। अब डिसेंट्रलाइज करना कैसे था कि अपनी करेंसी को हम एक तरह से डिवैल्यू करें या उस करेंसी को मार्केट में डिमांड जनरेट करें। मार्केट में डिमांड जनरेट कैसे होगी? डिवैल्यूएशन की वजह से। कि आपको जब हमें कोई चीज़ सस्ती दिखती है तभी तो हम खरीदते हैं ना। आज हमें पता चल रहा है कि एक चॉकलेट 10 रुपए की है और अचानक से आपको बोल दिया जाए कि 10 रुपए में 10 चॉकलेट, तो ऑब्वियसली आप साइकोलॉजिकल है, आप सोचोगे कि ठीक है 10 रुपए में 10 चॉकलेट ज़रूर खरीदेंगे। तो उसी तरह से है कि अगर इंडियन करेंसी जब $1 इक्वल्स टू 3 रुपीज़ या 2 रुपीज़ के आसपास ऑलमोस्ट इक्वलेंट था तो उतना डिमांड नहीं था इंडियन रुपीज़ का। बट देन ऑल ऑफ अ सडन $1 इक्वल्स टू 70 रुपीज़। अभी अमेरिकन्स बैठे हैं वहाँ पे, उन्होंने कहा भाई हम क्यों अपना IT सेक्टर में टाइम बर्बाद करें। जब 70 रुपए के बराबर वैल्यू है हमारी, तो हम उनसे जहाँ $1 में काम करवाते थे, $1 में काम करवाते थे, अब उनसे हम 70 बार वो काम करवाएंगे, 70 times, right? So the thing is कि devaluation enhances competitiveness in the international market. It can reduce trade deficits. Export की वजह से trade deficit will reduce, right, and stimulate economic growth. And for this reason specifically, we devalue, right? Now, however, devaluation can lead to inflation. This is also a negative point of devaluation. क्यों होगा ऐसा? अब इसका इकोनॉमिक मैकेनिज्म है। Devaluation होगा कैसे? Through injection of currency in the economy. अब इंजेक्शन कैसे होता है? आपने पे स्केल्स बढ़ा दिए। आपने क्या किया? आपने पे स्केल्स बढ़ा दिए। पे स्केल्स का मतलब है आपने हमारे यहाँ वो होता है ना, क्या बोलते हैं उनको, 7th पे कमीशन, 6th पे कमीशन, 8th पे कमीशन आने वाला है, सुन रहे हैं, राइट? सो ऐसे पे कमीशंस की वजह से हम सैलरीड लोगों को उनका परचेजिंग पावर बढ़ा देते हैं। हमने सैलरी 30,000 से 50,000 कर दी, 50 से 70 कर दी, 70 से 1 लाख कर दी। उनकी सैलरी बढ़ाते गए, उनके पास परचेजिंग पावर देते गए। परचेजिंग पावर आएगी तो ऑब्वियसली हम विल करेंगे ज़्यादा देने के लिए, विल टू और विल ट्राई टू बाय मोर ऑफ समथिंग एंड देन सेव मोर ऑफ समथिंग, राइट? देन हुआ कि जो सेलर है वो भी बोलेगा लेट्स चार्ज मोर, जिससे क्या होगा? इन्फ्लेशन अल्टीमेटली बढ़ेगा। But then this devaluation is done in such a way that it is controlled mechanism. Otherwise, it can be a problem. Okay. So devaluation can lead to inflation and higher cost of imports sometime. Okay. Then it is a monetary policy tool. Monetary policy है तो कौन करेगा बेटा? Central bank. Right? Central bank करेगा and used to manage the exchange rate. So central bank mostly use करता है इस particular policy को, monetary policy है क्योंकि so central bank हमारा RBI. Okay. In India, devaluation has been used to address trade imbalances and boost exports. मैंने आपको पहले ही बताया था, पिछले वीडियोस में बताया और अभी भी बताया कि it has been done twice or thrice. So first it was done in which year? It was done in 1949 for the first time. So devaluation on 20th September 1949 what happened formally. It involved lowering the value of the Indian rupee against US dollar. For the first time it happened, right? Again, exports boosted. Right, competition boosted. It happened aimed to address external imbalances and promote export competitiveness. Exports बढ़ गए, devaluation helped boost export earnings and stimulate industrial growth, which happened, right? And then it was a significant step in India's economic development during that period. देखो आपको clearly समझा चुका हूँ कि X minus M is an important component of GDP calculation. अब X यानी कि exports, M मतलब imports. Exports को प्रमोशन देना है, इंपोर्ट्स को नहीं देना है। तो एक्सपोर्ट जितना ज़्यादा करेंगे उतना हमारी कंट्री प्रॉस्पेरस होगी। तो एक्सपोर्ट से क्या होता है? फॉरेन रिजर्व भी आता है और हमारे पास एक बार्गेनिंग पावर आती है दूसरे कंट्री से नेगोशिएट करने की, जिस वजह से हम रिजर्व मेंटेन करते हैं, राइट? तो वो रिजर्व मेंटेन करने के लिए हमने डिवैल्यूएशन किया ताकि अब फॉरेन कंट्रीज के कुछ करेंसी हमारे पास भी होने चाहिए ताकि हम नेगोशिएट कर पाएँ, ट्रेड कर पाएँ उनके साथ, और जहाँ हम लैक करते हैं कुछ चीज़ों में वो हम खरीद पाएँ उनसे, right? Then it was the devaluation of 1949 was a part of broader economic reforms and policy, and one of the kind of reform it was, right? Because 1948 के बाद the country was in a very bad state, right? And it was not even self-sustainable.
people were not having food to eat, and that was the problem, and because of which we wanted to grow industry-wise. So before this, we have studied industrial policy reforms, right? So this was one of the measures under the industrial policy reform only. So devaluation was brought in 1949 for the first time. Second devaluation happened in 1966, right? So 1966 May, the devaluation of 1966 was a crucial event in India's economic history. Again, the same story, 6 June 1966. It involved a deliberate downward adjustment of the Indian rupees, the same process. Again to improve the competitiveness or the balance of payment problems. So balance of payment हम पढ़ चुके हैं. Balance of payment हमने clearly पढ़ा था कि capital account, current account, and then हमारे पास एक balancing figure होता है, right? उसको equivalent हमें zero लिखना होता है. तो balance of payment की स्थिति जो deficit वाली स्थिति है वो सुधारनी होती है हमें, right? And to improve that situation हमें अगेन अपने एक्सपोर्ट्स बढ़ाने एंड देन अगेन डिवैल्यूएशन. करेंसी की डिमांड जब घटेगी तो हमें एक तरह से उसको इंक्रीज करना है, राइट? डिमांड को इंक्रीज करना है. डिमांड को इंक्रीज करने के लिए क्या करना होगा? उस चीज़ को हमें लोगों तक पहुंचाना होगा एंड रीचेबिलिटी बढ़ानी होगी. रीचेबिलिटी बढ़ाने के लिए उसको डिवैल्यू करना पड़ेगा, राइट? सो इट हेल्प्ड बूस्ट एक्सपोर्ट अर्निंग्स, रिड्यूस ट्रेड डेफिसिट्स एंड स्टेबलाइज द इकोनॉमी. सो बेसिकली फिर से वही पूरा मैकेनिज्म फॉलो अप हुआ. हमारे एक्सपोर्ट अर्निंग्स बढ़ गए, ट्रेड डेफिसिट्स रिड्यूस हो गए एंड हमारी इकोनॉमी स्टेबलाइज्ड फॉर्म में आ गई. एंड द डिवैल्यूएशन ऑफ 1966 प्लेड अगेन अ सिग्निफिकेंट रोल in India's economic recovery and restructuring efforts during that period, right? So 1966 was the second time devaluation happened, and then 2011 formally devaluation happened, right? See, devaluation के दो तरह हो सकते हैं. एक तो market mechanism के through you devalue things, like salaries बढ़ा दी या कुछ कर दिया. But then आप deliberately जब करते हैं, गवर्नमेंट deliberately करती है या आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट deliberately करती है, तब आप बोल के करते हैं कि ठीक है आप हमारे 1 रुपए की वैल्यू इतनी है या इसके एक्सचेंज में हमें इतने डॉलर्स है, इतने रूबल, इतने येन, ये सब चाहिए, राइट? बट अभी मार्केट मैकेनिज्म से एक नॉर्मल प्रोसेस, नेचुरल प्रोसेस है कि मार्केट मैकेनिज्म से आप जब डीवैल्यू करते हो तो वो एक अनसेट सी थिंग है, अनसेट थिंग है कि आप बोलते हो कि ठीक है सैलरीज बढ़ा दी, लोगों के परचेसिंग पावर बढ़ गए, तो वहाँ डिवैल्यूएशन ऑटोमेटिक हो रहा है. यहाँ डिवैल्यूएशन डेलिब्रेट है एंड वी आर टॉकिंग अबाउट डेलिब्रेट डिवैल्यूएशन नाउ, राइट? So devaluation of 2011 refers to the downward adjustment. Again, the same thing. It occurred in response to economic challenges and global market conditions. क्योंकि हमारे पास इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिफॉर्म आ चुका था, इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमीज हो चुकी थी, ग्लोबलाइजेशन हैपेंड, राइट? नाउ वी वांटेड मोर रिजर्व्स ऑफ अदर करेंसी. सो फॉर दैट रीजन अभी वी हैड इकोनॉमिक चैलेंजेस एंड ग्लोबल मार्केट कंडीशंस. सो एज टू इम्प्रोवाइज दैट वी डिड डिवैल्यूएशन. And devaluation की वजह से again the currency was in demand, and currency was in demand means our services were in demand, our products were in demand, and for that reason we started exporting again, right? So devaluation aimed to enhance export competitiveness and attract foreign investment. It resulted in a lower value of rupee against major currencies, making exports more affordable. So और countries के लिए हमारे जो products थे, हमारे services थे, more affordable हो गए. For example, again IT sector का Bangalore, right? आज भी आईटी सेक्टर में बैंगलोर का नाम पूरे वर्ल्ड में है, राइट? आप सिंगापुर जो एक फर्म का सेटअप माना जाता है, कंपनी का सेटअप माना जाता है कि आप कंपनी फ्रेंडली कंट्री है, उससे बेटर सिचुएशन में है बैंगलोर, हमारा एक सिटी छोटा सा, कि आप उसको वर्ल्ड लेवल पे आईटी के लिए जाना जाता है, राइट? यूएस में भी अगर कोई आईटी सर्विसेज चाहिए तो बैंगलोर ही आदमी अप्रोच करता है, राइट? So the devaluation of 2011 impacted various sectors of the Indian economy and contributed to the management of trade imbalances and external pressures. So that's how 3 devaluation happened. So we studied in this lecture the industrial licensing, the features of industrial licensing, MRTP Act, and then we studied about privatization. There were certain methods which we have discussed about how the privatization is done, and then the devaluation thing and the devaluation methods also. And there are 3 times when devaluation was done. To get in-depth knowledge of various subjects in commerce, we recommend these books from S-John Publishing and Vikas Publication. Link is provided in the description box. If you found our video interesting, please like, share and subscribe. And do not forget to press the bell icon.
All rights reserved. This video has been prepared for educational purposes only. No part of it may be reproduced or copied without the permission of the copyright holder.